Check. Yes, sir. Now it is visible. Okay, no issue. Okay, let's start. Where were we in last lecture? We are discussing. We have discussed system components. We have discussed what is operating system is all about, and we are discussing operating system functions or services, right? Okay. In the functions, we discussed memory management, processor management, and device management. Okay. Next we have next function we have, let me choose ink first, red one. Okay, next we have fourth one, will file management. File management, what do you think, what operating system does against it? Okay, anybody can tell me what is file system? Why we create file system? Okay, leave it. A file system is normally organized into directories which contains files and other directories. For what purpose they are doing? For easy navigation. Navigation and uses. राइट, यही होता है फाइल सिस्टम बच्चे. फाइल सिस्टम कुल मिला के एक ही चीज, इसी चीज का नाम तो है ना बच्चे, कि भैया आप ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, जो भी आप सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं, उसको आप एक किसी पैटर्न में स्टोर करते हैं. जनरली जो आपका पैटर्न है, जीयूआई बेस्ड जो पैटर्न है, वो आपका क्या है कि भाई आपकी डायरेक्टरीज होंगी, सब डायरेक्टरीज होगी, उनके अंदर फाइल्स होंगी, राइट. तो ये एक तरह का पैटर्न है ना, कि आप उसमें इस फॉर्म में, इस तरह के पैटर्न में आप फाइल्स को स्टोर करते हैं सिस्टम में, राइट. Yes, तो sir. इसके इसके अगेंस्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट देता है, उसका काम क्या है, उसका क्या काम है इसके अगेंस्ट? उसका काम है जी, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस, एटसेट्रा. जो भी फाइल्स स्टोर्ड हैं उनकी लोकेशन, इंफॉर्मेशन, उसके उनके यूजेस, क्या कौन यूज कर रहा है, उनका स्टेटस क्या है, क्या वो ओपन है इस समय या क्लोज्ड है, ये सब चीजें कीप ट्रैक करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. तो इस जो ये जो कलेक्टिव, दिस कलेक्टिव फैसिलिटीज आर often known as file system of a system. फाइल सिस्टम, राइट. इसी चीज को हम फाइल सिस्टम कहते हैं कि भाई आपका फाइल सिस्टम अगर मान लो FAT32 है, NTFS है, सुना है ना फाइल सिस्टम, तो सुना होगा बच्चे. हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर, फाइल सिस्टम? Yes, sir. No, sir. Okay, who told no? बच्चे, who told no? Sir, me, Divyansh. Divyansh, beta, have you erased your disk any time in the past? Have you erased your pen drive or format your Yes, pen drive? At yes, that sir. time, window asks you for the file system, whether you want to format it in FAT32, whether you want to format it into mm, NTFS,
Okay, let me show you. Okay, let me show you. Are you able to see the drive? Yes, sir. Okay. Now, when I want to format it, it is asking me these details. See there, second entry, file system. In which file system I want to format it, right? Yes, sir. If I open it, there is only NTFS because my complete system is in NTFS file system. That's why it's not showing FAT32. Otherwise, in the old version of the Windows, if you try to format your pen drive or any drive, then it will give you the option for FAT32, FAT16, NTFS, right? And in the Linux, it will show you X extends. I know I'm not remembering the term. File system extended. I think EX something like that. Let me search. Let me search. Okay, let me search it. File system of Linux. Linux file system. EXT. EXT is the Linux file system, right? There are many file system available with us. We can use any one, but generally in general, Linux provide EXT file system. Name is EXT. It will be EXT2. It will be EXT3 like that only, and EXT3 is the advanced version of EXT2, right? And it is the most strongest file system we have in the market, right? What do you mean by most strongest file system, Jay? Have you come to know any time that if you format your pen drive in Linux and you want to use it in Windows, it will not show anything of that pen drive. Why? Because your FAT32 or NTFS file system, which are basically of Windows file system, are older than EXT file system, advanced file system. That's why it will not show you any file of that particular pen drive. But in Linux, you can open any file system, FAT32 or NTFS. Why? Because ext file system will provide backward compatibility in that case, right? Are you getting my point? Yes, sir. है ना? अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो सीधा सीधा मतलब ये है कि कई बार आप अगर किसी अपनी पेन ड्राइव को लाइनेक्स सिस्टम में जाके फॉर्मेट करके उसमें कुछ चीज सेव करोगे और फिर उसको चाहोगे कि विंडो पे एक्सेस करोगे, विंडो पे लगाओगे उसे, तो वो आपको दिखाएगा ही नहीं उसके अंदर की फाइल्स। क्यों? क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो एडवांस फाइल सिस्टम है EXT, और आपकी जो पेन ड्राइव है वो EXT में फॉर्मेट हुई हुई है, तो वो एडवांस फाइल सिस्टम है, तो उसे रीड ही नहीं कर पाता, है ना? बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर आप विंडोज में NTFS में या फिर FAT32 में किसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हो और उसे उसे लाइनेक्स पे कहीं यूज करते हो, तो आप उसकी जितनी फाइल्स हैं वो देख सकते हो वहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई EXT एडवांस फाइल सिस्टम है, वो रीड कर सकता है उसके प्रीवियस फाइल सिस्टम्स को, जैसे कि FAT32 और NTFS, राइट? फैट का पूरा नाम पता है बच्चे? No, sir. फाइल एलोकेशन टेबल। इसका कोई ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है। ये फाइल एलोकेशन टेबल को ही FAT32 बोल देते हैं हम लोग। 32 मतलब 32 बिट सिस्टम के लिए, FAT16 मतलब 16 बिट पे काम करता है, राइट? तो पुराने टाइम में आपके जो सिस्टम्स थे वो 16 बिट के हुआ करते थे, तो वहां पर FAT16 चलता था। बट जब आपके सिस्टम एडवांस हुए तो 32 पे बिट पे आए, तो फिर 32 बिट पे आपका FAT32 चला। और जब तक वो 64 पे आते उससे पहले NTFS आ चुका था, नेटवर्क फाइल सिस्टम आ चुका था। तो इसलिए अब NTFS ज्यादा चलता है। आपका विंडोज जनरली NTFS को सपोर्ट करती है। क्यों? उसका रीजन था क्योंकि ये सिक्योर बोला जाता था। जो आपका FAT32 है वो उतना सिक्योर नहीं था, बट जो आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम है वो सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो भी आप फाइल्स स्टोर कर रहे हो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करता है इसे। तो जनरली अगर कोई मतलब उसे हैक करके यूज भी करना चाहता है तो उसको थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टास्क उसके लिए, फाइल्स को रीड करने का, राइट? ओके एक क्वेश्चन था। ओके बच्चे।
सर जैसे कि फॉर्मेट करते हैं वो तो सर बेसिकली डिलीट करना होता है ना सर, उसके अंदर जितनी भी फाइल। हाँ, तो जब तूने फॉर्मेट करा उसको, तूने बोला कि एनटीएफएस में फॉर्मेट कर, तो यानी कि उसने जब उसको फॉर्मेट करा तो ऑब्वियस सी बात है, उसको उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए उसमें एक फाइल सिस्टम वो माउंट भी करेगा। तो जो तूने दिया उसे एनटीएफएस, तो उसने एनटीएफएस वाला जो उसका पैटर्न है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो उसमें माउंट कर दी, मतलब वो उसमें उसने एक तरह से कॉपी कर दी। तो अब जो भी फाइल उसमें जाएगी वो एनटीएफएस फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सेव होगी। राइट। अब होगा क्या, अब मान लो एनटीएफएस वाली फाइल सिस्टम में अगर कुछ चीज स्टोर है, उसको हम लाइनक्स पे खोलेंगे तो खुल जाएगी इजीली। क्यों? क्योंकि जो आपका एक्सटेंशन EXT जो फाइल सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है इनको, FAT32 की फाइलों को भी रिकॉग्नाइज करता है, और एनटीएफएस फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सुना होगा आपने कभी, जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो उसमें सुनना सुना होगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर के नए वर्जन निकालते हैं या किसी भी चीज के नए वर्जन निकालते हैं तो हम लोग बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी देना कंपलसरी हो जाता है, ताकि एटलीस्ट 2 लेयर तक पिछले दो दो जो वर्जन है उनको तो एटलीस्ट सपोर्ट दो। पुराने यूजर्स को आप एकदम से ब्लॉक नहीं कर सकते, उनकी उनको सर्विसेज देनी जरूरी होती है, इसलिए हम बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है। तो बट इसका रिवर्स रिवर्स नहीं है पॉसिबल भाई। जो चीज नहीं बनी किसी पुरानी चीज को एक्सटेंड करते हुए, तो वो तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी देगी देगी। बट मान लो कोई पुरानी चीज है और उस पर तुम नई चीज जो नया फाइल सिस्टम है उसको एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं कि इस फाइल सिस्टम में कैसे स्टोर होती है चीजें। नहीं समझे? यस सर। अब जैसे मान लो आप घर में अपनी अपनी डेस्क को मैनेज कर रहे हो, अपनी बुक लाइब्रेरी को मैनेज कर रहे हो, जो आपकी कबर्ड में लाइब्रेरी है उसको मैनेज करो, तो आपको तो पता है कि भाई आपकी जो क्या कहते हैं फिजिक्स की बुक है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में रखी है, मैथ्स की बुक इधर रखी है, कंप्यूटर साइंस की बुक इधर रखी है। बट अगर आपको बोला जाए कि भाई किसी थर्ड पर्सन के घर में जाके वहां पर उस फाइल उस पर्टिकुलर बुक को ढूंढो, कंप्यूटर साइंस की बुक को ढूंढो, तो आपको पूरी पूरी सर्चिंग दोबारा करनी पड़ेगी, तो आपको क्योंकि पता ही नहीं है ना कि उसने कहाँ पर रखी है, तो इसलिए वो अननोन हो गया आपके लिए। तो वही मान के चलो कि भाई आपका फाइल सिस्टम तो जो आपके घर का है वो एनटीएफएस है, बट जब जिस थर्ड पर्सन को की फाइल सिस्टम को आप रीड करना चाह रहे हो वो तो एडवांस फाइल सिस्टम है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। राइट। यस सर। इसलिए वो अनरीडेबल है उसके लिए। राइट बच्चे? यस सर। चलो, तो भाई एक तो भाई फाइल सिस्टम मैनेज करना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। फिर जो फाइल सिस्टम है उसमें डिसीजन लेना, डिसाइड हु गेट्स रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स पे चेक मार्क्स लगाना कि भाई कौन एक्सेस कर सकता है। अब जैसे मान लो System32 की फाइल्स को मैं गेस्ट को तो एक्सेस नहीं करने दूंगा ना, वो केवल सुपर यूजर ही एक्सेस कर सकता है। तो ये जो एक्सेस राइट्स प्रोवाइड करना ये सब किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। राइट। या फिर हु गेट्स रिसोर्सेज, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलोकेशन एंड डी allocation of resources among files। राइट। तो ये मेजर टास्क होते हैं उसके फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में। तो ये तो आप अभी केवल एक तरह से ओवरव्यू देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल नहीं बताई जा रही है। डिटेल में जब हम जाएंगे तो अभी हम ये शायद फाइल सिस्टम मेरे ख्याल से आपका आएगा 5th यूनिट में आएगा, है ना। तो वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे कि इसके अंदर ये क्या क्या कर रहा होता है, कैसे मैनेज कर रहा होता है फाइलों को, कैसे इसमें एक्सेस मेथड्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, फाइल शेयरिंग कैसे होती है, प्रोटेक्शन फाइलों को प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड ऑल, ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम अभी इसमें, है ना। तो बाद में आएगा। तो ये तो थी मेजर मेजर सर्विसेज आपकी, है ना। जैसे कि भाई प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये तो मेजर है। इनके अलावा भी कुछ अदर अदर सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है। तो वो जो अदर सर्विसेज हैं आपकी, वो कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं हम अभी। हम 0.5 के अंडर डाल देते हैं अदर सर्विसेज या फिर फंक्शंस जो कि ओएस परफॉर्म करता है। राइट। तो इसके अंदर एक कैटेगरी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी इन द सेंस, सिक्योरिटी यहाँ पर ओएस आपको कैसे प्रोवाइड करेगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, प्रिवेंटिंग
अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब अनऑथराइज एक्सेस किसके लिए? टू प्रोग्राम्स एंड डाटा, राइट। तो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू जो भी आपके प्रोग्राम और प्रोसेस जो सिस्टम में चल रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और उनसे रिलेटेड डाटा जो भी सिस्टम में स्टोर है या फिर उनसे रिलेटेड ना भी हो, पहले से स्टोर है, तो उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो जनरली हम आप देखते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे लॉगिन स्क्रीन, सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन देता है, राइट। तो उसमें पासवर्ड की मैकेनिज्म लगाता है वो, राइट, होता है। होता है ना, जब आप सिस्टम खोलते हो तो आपको पासवर्ड देता है, मांगता है वो आपसे। यस सर। तो एक तरह से वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म ही है कि भाई कोई भी बंदा जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके और आपकी फाइलों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। वो बात अलग है अगर उसको पासवर्ड आपने खुद ही दे रखा है, तो भाई फिर तो जिम्मेवारी आपकी है ना, ओएस की थोड़ा गलती है उसमें। ओएस ने तो आपको मैकेनिज्म दी थी अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने की, पर आपने पासवर्ड खुद ही बांट दिया, है ना। तो एक तो ये तरीका है। उसके बाद दूसरे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे वो प्रोसेस के डेटा को स्टोर सेव करता है। वो हम अभी जब प्रोसेस पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में आएगा, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या किस तरह से प्रोसेस को सिक्योर करता है अदर प्रोसेस से। ऐसा ना हो जाए कि भाई एक प्रोसेस के जहाँ पर एक प्रोसेस की इमेज जहाँ पर है उसी पे दूसरे प्रोसेस की इमेज कॉपी हो जाए, ऐसा कभी ना हो। रनिंग प्रोसेस के ऊपर किसी दूसरी प्रोसेस की इमेज ना कॉपी हो जाए, इसका ध्यान रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो वो भी एक तरह से उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, राइट। और या फिर जैसे कि एक्सेस देना, किसी भी प्रोसेस की जो आपका सिस्टम में प्रोसेस चल रहा है उसकी मेमोरी लोकेशन देना, एक्सेस का एक्सेस देना। तो उसकी मेमोरी लोकेशन का एक्सेस वो कभी नहीं देता आपको, राइट। वो कभी भी ओएस आपको ये अलाउ ही नहीं करेगा कि आप किसी प्रोसेस की मेमोरी का लोकेशन मतलब एड्रेस आप उसे एक्सेस कर सको। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अगर मान लो किसी ने किसी सिस्टम के अंदर घुस के उसके रनिंग प्रोसेस का मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर लिया, तो दैट मीन्स उसने उस प्रोसेस को एक्सेस कर लिया। तो उस प्रोसेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए वो एक्सेस नहीं देता। तो हम जनरली देखना, आप जब सी प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें पॉइंटर्स होते हैं, राइट। पॉइंटर्स होते हैं बच्चे, यस यस सर। यस सर। सर। उससे आप एड्रेस निकाल सकते हो। यस यस सर। सर। बट आपको क्या लगता है कि वो जो आपको एड्रेस उसने दिया वो क्या फिजिकल एड्रेस है, रियल एड्रेस है वो? आपको क्या लगता है कि उस एड्रेस पे जाके आप उस डाटा को एक्सेस कर पाओगे? नो। हाँ, वो रियल एड्रेस नहीं होगा बच्चे, वो कभी भी आपको शेयर नहीं करेगा। किसी भी यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल एड्रेस नहीं देता। वो एक लॉजिकल एड्रेस देगा आपको, कभी भी फिजिकल एड्रेस नहीं देगा। और लॉजिकल एड्रेस रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बस वो क्या करता है, जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है उसकी मैपिंग अपने पास रखता है वो। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर है और ओएस के अलावा कोई और यूजर उसे उस लॉजिकल एड्रेस पे जाके उसको एक्सेस करना चाहे तो वो उसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा, अगर ओएस ने अलाउ नहीं किया है तो जनरली वो इसको डिस्क्लोज नहीं करता कभी भी, और ना ही वो आपको एक्सेस करने देता है। क्योंकि वो अगर ऐसा करने देगा तो वो अपने आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है एक तरह से। वो ओएस के खुद की सिक्योरिटी ब्रेक कर रहा है, राइट। तो कुछ इस तरह से भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोसेस रिलेटेड सिक्योरिटी, राइट। राइट बच्चे, तो ये सब चीजें हम अभी आगे सेकंड यूनिट में आएंगे। एक दो क्लास के बाद हम सेकंड यूनिट में आ ही जाएंगे। वो करता है वो, राइट। सर ये तो लेकिन समझ हम में आ लोग गया। सी प्रोग्राम का सर आप बात किए, हाँ बच्चे। वहाँ पे पॉइंटर को यूज करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सर, हम चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, पर वो आपको फिजिकल एड्रेस नहीं देगा, उसकी वैल्यूज तो रिटर्न करने देगा आपको, फिजिकल एड्रेस नहीं देगा उसका, कि रियल में फिजिकली वो मेमोरी में कहाँ पर है। जो आपको मिलता है वो एक क्या कहते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस है वो, यानी कि लॉजिकल एड्रेस है वो, जो कि सीपीयू ने जनरेट किया है। समझ में आया बच्चे? ओके सर, तो वो क्या एड्रेस होता है सर, फिजिकल एड्रेस? अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ बच्चे, वो जब हम अभी प्रोसेस में आएंगे, प्रोसेस में आएंगे ना, तो उसमें आपको रियल में पता चलेगा कि जहाँ पे प्रोसेस सेव होता है उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो मैप किया जाता है लॉजिकल एड्रेसिंग से। तो लॉजिकल एड्रेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, बट जबकि फिजिकल एड्रेस कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। तो उसकी मैपिंग करना, इसे हम बोलते हैं रिलोकेशन रजिस्टर का यूज करता है वो इसमें। रिलोकेशन रजिस्टर का यूज करते हैं हम लोग, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, और उसका यूज करके हम लोग अपने फिजिकल एड्रेस को हाइड अप कर देते हैं।
तो आपको जो मिलता है उसमें प्लस रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू जुड़ती है, तब जाके फिजिकल एड्रेस निकल के आता है। तो वो जो रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू है वो कभी भी आपको पता ही नहीं होगी, वो तो आपका ओएस मैनेज कर रहा है, ओएस को ही पता है। तो उसने सिक्योर कर दिया फिजिकल मेमोरी को, फिजिकल मेमोरी के एक्सेस है उसको सिक्योर कर दिया। तो कोई भी अगर कोई हैकर है वो आपकी रनिंग प्रोसेस में के एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा कभी भी। राइट, तो अपने लेवल पे देता है ये सिक्योरिटी। वो बात अलग है कि हमारे हैकर और भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के वो जान गए हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज की जा सकती है। राइट, तो ये सिक्योरिटी समझ में आ गया बच्चे कि अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा प्रोवाइड करना, राइट, मना ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा। राइट, ये समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर वो क्या करता है जी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब जो भी सिस्टम परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर करता रहता है। आपने जैसे हमने उस दिन टास्क मैनेजर चलाया था तो आपको दिख रहा था ना कि वो उसके अंदर सब कुछ आ रहा था, कौन कितनी मेमोरी ले रहा है और ये सब उसका पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा था वो। तो इसके अंदर जनरली वो, इसे हम जनरली बोलते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए रिसोर्स सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। तो जनरली इस रिकॉर्डिंग में वो ये चीज देख रहा होता है कि भाई किसी ने अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट करी है तो उसको जब कब तक वो मिला नहीं, सिस्टम से कितनी देर बाद उसके लिए वो सर्विस एक्टिवेट हुई, कितनी देर बाद उसे वो सिस्टम सर्विस मिली। मान लो कोई प्रोसेस अगर सीपीयू डिमांड कर रहा है और उसने टाइम T0 पे डिमांड करा और उसे जो सीपीयू दिया गया वो टाइम T2 पे दिया गया, तो ये जो गैप है T0 टू T2, दिस विल बी कॉल्ड अ डिले। तो इनको मॉनिटर करता रहता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता रहता है वो। राइट, फर्दर डिसीजन लेता है कि आगे हम कैसे सर्विसेज को ग्रांट करेंगे। राइट, ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, और उसका जॉब क्या है जी? उसका काम है जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग किसे बोलते हैं बच्चे हम लोग? जॉब अकाउंटिंग मतलब कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स used by various jobs and users। ठीक है, तो किस यूजर को कितने टाइम के लिए सीपीयू दिया गया और उसको कितने डिमांड है उसकी, और या किसी जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है, ये सब रिकॉर्ड, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रखना वो भी आपका किसका काम है? ओएस का। राइट, तो ये तो एडिशनल फंक्शंस है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम सारे नहीं देखेंगे, हम लोग केवल उन्हीं को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको लगता है कि भाई ये तो करेगा, करता ही करता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको करना ही पड़ेगा प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। राइट, और जैसे इसमें फर्दर आ सकता है आपका एरर डिटेक्टिंग एड्स, है ना? तो इसमें इसमें उसका काम क्या है जी? प्रोडक्शन ऑफ डंप ट्रेसेस एरर मैसेजेस and other de- debugging
debugging and error detection एड्स। ठीक है, तो जितने भी आपके एरर आ रही हैं सिस्टम में, उनके डम्प्स क्रिएट करना, लॉग क्रिएट करना, वो सब, और डिबगिंग, एरर डिटेक्शन, एड्स प्रोवाइड करना, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क हैं, क्योंकि इनके बेस पे ही वो अपने परफॉर्मेंस को बाद में मैनेज करता है। इनके बेस पे उसे पता चल पाता है कि कहाँ पर उसे ट्रबल शूटिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर वो चांसेस हैं कि वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी सर्विसेज, राइट। आपने देखा होगा कई बार आपसे किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका क्लाउड से आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि भाई क्या आपको ये एरर रिपोर्ट क्लाउड पे भेजनी है, इसके इसके डेवलपर पे भेजनी है। तो हम जनरली इसमें नो कर देते हैं, जबकि वो इसलिए डिमांड कर रहा होता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी सर्विसेज, राइट। तो उसी तरह से कुछ आपका ओएस भी बैकग्राउंड में ये काम कर रहा होता है, राइट। एंड लास्ट, coordination and coordination between other software and users। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इसका, यही हम अगली यूनिट में पढ़ने वाले हैं अभी, कि प्रोसेस कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं आपस में। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या करता है जी, इसके अंदर कुछ नहीं करता, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, assembler and other softwares to various users of computer system। ठीक है, तो जो भी उसके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूजर के लिए और प्रोसेसेस के लिए उसके पास अवेलेबल हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस होगा जो कि इनका यूज कर रहा होगा। हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम पे रिक्वेस्ट करें किसी कॉमन सॉफ्टवेयर की, तो उस समय सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, ये सारा टास्क किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो अब तक जो भी आपने देखा, ये सब क्या थे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे और मेजर फंक्शंस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके अपने टास्क हैं जो छोटे छोटे हैं, जो हम जनरली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये मेजर टास्क है उसके, ये तो वो करेगा ही करेगा, इतना काम तो उसे करना ही पड़ता है। बाकी एडिशनल, जैसे मान लो किसी ने कोई स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया, ओएस बनाया, तो जैसे मान लो कोई साइंटिफिक ओएस बनाया साइंटिफिक पर्पज के लिए, तो उस हो सकता है कि उसमें उसमें जो इनके अलावा भी कुछ एडिशनल वो सर्विसेज देता हो, है ना। लाइक जैसे आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इन बेसिकली ये वाले फंक्शंस जो हैं, इनको वो मॉडिफाई करता है किस किस इन्वायरमेंट के लिए, नेटवर्क और इन्वायरमेंट के लिए, नेटवर्क इन्वायरमेंट के लिए, मतलब आपका जो सिस्टम्स है वो नेटवर्क में लगे हुए हैं और वहां पर वो आपको सर्विसेज देनी है। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आपने सुना होगा RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ये सुना है कभी, रिमोटली एक्सेस करना एक सिस्टम की फाइल को, किसी सिस्टम की फाइल को यूजिंग नेटवर्क। तो वहां पर ये सर्विसेज थोड़ा चेंज हो जाएंगी, बट रहेंगी तो वो सर्विसेज ना, तो वहां पर ये सर्विसेज एड ऑन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो डिपेंड करता है कि नीड के ऊपर, कि आपकी जो जिस जिस पर्पज के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि स्पेशल टाइप की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो। तो अगर स्पेशल टाइप की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तो वो एड ऑन हो जाएंगी, बट जो आपने यहाँ पर पढ़ी ये वो सर्विसेज हैं जो कि एक मोस्ट 99% केसेस में हर एक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा ये सब चीजें, राइट। है ना, कोई कोई इसमें डाउट है बच्चे? एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। Yes, sir.
ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। इससे आपको एक थोड़ा सा लाइट आइडिया लग जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या क्या हैं और जनरली क्या क्या करता है, और हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम यही सब चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपने फंक्शंस देखे हैं, ये हर अपने अपने आप में अलग अलग यूनिट हैं आपके कोर्स में। तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये सब आपका किस में आ जाता है? आपका हर एक यूनिट अलग अलग आएगी अभी। मेमोरी मैनेजमेंट एक अलग यूनिट आएगी, फाइल मैनेजमेंट अलग यूनिट आएगी, आईओ मैनेजमेंट आपका अलग यूनिट में आएगा, है ना। प्रोसेस प्रोसेस मैनेजमेंट अलग आएगा। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। जनरली जनरली हम क्या यूज करते हैं, मतलब जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करता है, वो जनरली बेसिक एल्गोरिथम्स कौन कौन सी यूज करता है, जो कि लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगी आपको। बेसिक्स, सारी नहीं, एडवांस नहीं, बेसिक्स कह रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो अब तो खैर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एडवांस हैं। और कभी भी ध्यान रखना, जो भी आप एल्गोरिथम यहाँ पढ़ने वाले हो, आप ये गारंटीड नहीं बोल सकते ये वाला पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाले मेथड को यूज कर रहा होगा। क्यों? जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइनर होते हैं वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते अपने एल्गोरिथम्स को, क्योंकि अगर वो एल्गोरिथम को डिस्क्लोज करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी इंक्रीज, राइट। राइट ना। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, Yes, आ sir. रही है सर। ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जनरली जो आपके सिस्टम्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। आपने जैसे अब पुराने जो आपके सिस्टम हुआ करते थे वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है ना। उस समय आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं हुआ करते जैसे आप आज की डेट में देख रहे हो। तो उस टाइम पे जो प्रोसेसर को हम टास्क देते थे वो बैच की फॉर्म में देते थे, मतलब आप यूजर जो है ना डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। तो आपको जो भी टास्क करवाना था उसके लिए आप एक बैच बनाते थे, बैच फाइल बनाते थे, और उसको आप थ्रो कर देते थे सिस्टम के पास, और सिस्टम उसके हिसाब से उसके साथ प्रोसेसिंग करके रिजल्ट्स आपको सेंड बैक कर देता था। रिजल्ट आ जाते थे, आप उसको नोट डाउन कर लेते थे। तो ये तो था बहुत पुराने टाइम की बात। अब नहीं होते, अब जनरली सारे सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुके हैं। उनके पास अपनी मेमोरी है, पहले ऐसा नहीं था, है ना। पहले मेमोरी का फंडा था ही नहीं। पहले तो आपका बस एक प्रोसेसर हुआ करता था, उसको टास्क जैसे जैसे आपने पता नहीं देखे नहीं देखे, पुराने टाइम में पंच कार्ड्स चलते थे। उनमें आप अपनी जॉब्स को पंच करते थे, और फिर वो पंच कार्ड आपके उस प्रोसेसर के पास, मदरबोर्ड टाइप का एक प्रोसेसर होता था, उस पर अटैच कर दिया जाता था। तो उसमें जो भी आपने जॉब लिखी होती थी उसका वो रिजल्ट सेव कर देता था, राइट। ये तो थे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो मैं केवल डिस्कस कर लेता हूँ इनको, इससे इसमें ज़्यादा डीप में जाने का नहीं है आपको, ये बस आपको पता होना चाहिए। तो उस समय चूंकि ओएस अलग से एंटिटी नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए हम लोग पहली जो कैटेगरी है बैच की, उसको ओएस के नाम से नहीं लिखते, सिस्टम लिखते हैं हम उसे, सिंपल, है ना। तो इसमें क्या है, जो भी आपका इसका यूजर होता है वो पहली क्या है इसके कंडीशंस कि जो भी इसका यूजर है वो उस समय चूंकि सिस्टम हुआ करता, मैकेनिकल डिवाइस टाइप, जैसे आपका मैकेनिकल डिवाइस होती है, वैसे वैसे ही समझो इसको कि भाई पंच कार्ड हुआ करते थे, आप पंच करते थे जॉब को, है ना। तो उसमें डायरेक्टली आप कंप्यूटर के साथ डील करते ही नहीं थे, यूजर डायरेक्टली डील नहीं करता था, ठीक है। और वो क्या करता था कि वो अपनी जो भी जॉब है उसको ऑफलाइन डिवाइस में पंच करता था, पंच कार्ड की फॉर्म में, और अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देता था। अब कंप्यूटर ऑपरेटर उस जॉब को कंप्यूटर पे डालता था, और कंप्यूटर से रिजल्ट निकाल के वो आपको वापस कर देता था। तो जनरली इसमें हम एडवांसमेंट कर सकते थे, तो यही कर सकते थे कि वो जो सिमिलर टाइप की जॉब्स हैं आपकी, उनको हम एक सिंगल पंच कार्ड में या फिर सिंगल जॉब कार्ड उसका बनाते थे, जो एक तरह की जॉब होती है। जैसे मान लो आपकी तीन चार जॉब्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन का यूज करने वाली है, राइट। तो वो सारी जॉब जो सेम नेचर की हैं उनको हम सिंपल एक एक सिंगल जॉब कार्ड के थ्रू हम सॉल्व करवा देते थे। हम इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा कंट्रोल था ही नहीं कंप्यूटर पे। हम उसमें ज्यादा कंट्रोलिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी उस टाइम पे, राइट। तो इसका ड्रॉबैक क्या था जी कि भाई आप
आपका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कंप्यूटर के साथ, तो भाई इंटरेक्शन तो जीरो हो गया यूजर और सिस्टम के बीच में, है ना। तो इसलिए ये लेस फ्लेक्सिबल थे। और जनरली इसमें दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज क्या था जी आपका, कि भाई सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल पड़ा रहता है। जब तक आप जॉब बना रहे हैं, जब तक आप पंच कार्ड बना रहे हैं, तब तक आपका सीपीयू आइडियल है। वो कुछ भी नहीं परफॉर्म कर रहा, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं कर रहा, वो खाली पड़ा हुआ है। तो सीपीयू की जो थ्रूपुट थी वो सबसे मिनिमम थी इस तरह के सिस्टम्स में। और इसमें तीसरा जो ड्रॉबैक था आपका जनरली वो ये था कि भाई आप इसमें प्रायोरिटी डिफाइन कर ही नहीं सकते थे। आप सिस्टम को ये पंच कार्ड के थ्रू ये नहीं बता सकते थे कि भाई इस वाले कैलकुलेशन की प्रायोरिटी हाई है, इस वाले कैलकुलेशन की प्रायोरिटी लो है। तो ये ऐसा कोई आपके पास क्या कहते हैं, ऐसा कोई लॉजिक था ही नहीं उस समय। तो आपको अगर कोई चीज पहले करवानी है तो आपको उसका पंच कार्ड पहले देना पड़ेगा, राइट। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, राइट। उसके बाद आए हम लोग यहाँ पर, तो आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में इंटरेक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। फिर इन्होंने एडवांस करा मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बोल देते हैं इसे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या बोला जी, कि भाई अब इसमें देखो बैच में क्या होता था कि एक बार में एक ही जॉब होती थी, वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, ठीक है। बट मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, इन्होंने फंडा ले आया मेमोरी का। इसमें आ गई मेमोरी, उस समय डेवलप हो चुकी थी मेमोरी। तो अब सीपीयू के पास मेमोरी भी थी। तो क्या करते थे हम इसमें, हम इफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जितनी भी जॉब्स हैं आपकी उसको इनलाइन कर देते थे। इसमें जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री एंड सो ऑन, राइट, ऐसे करके। और वन आफ्टर अनदर हम लोग सीपीयू प्रोवाइड करते थे उन्हें, राइट। तो जॉब वन आएगी, फिर वो अपना काम करके जाएगी, फिर उसके बाद जॉब टू को फैच किया जाएगा, फिर जॉब थ्री को फैच किया जाएगा। तो वन आफ्टर अनदर हम लोग फैच करवाते थे जॉब को। होता एक बार में एक ही था, बट यूजर को ये लगता था कि एक साथ चार जॉब रनिंग में है। ये आपकी मेमोरी थी, राइट। इसका लॉजिक समझ में आ गया। तो जितने नंबर ऑफ जॉब्स आप एक साथ अकोमोडेट कर सकते हैं मेमोरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट। मीन्स अगर अगर आपके सिस्टम में, आपकी मेमोरी में आप एक साथ, रैम में, फिजिकल मेमोरी में अगर आप एक साथ चार जॉब रख सकते हैं, तो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी, उस सिस्टम की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी बच्चे, 4। 4। और अगर 5 तो 5, है ना। तो जैसे जैसे आपकी मेमोरी का स्पेसिंग बढ़ती गई, मेमोरी और का स्पेस बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती गई। बट रियल में देखा जाए तो बाइट अंडर द नीट सिस्टम में, अंडर द नीट आपका जो सीपीयू है वो एट ए टाइम एक ही को रन कर रहा होता था, राइट। यहाँ पर समझ में आ गया। इसके बाद हमने कहा कि यार इससे तो इसमें तो ज्यादा डिफरेंस आया ही नहीं बैच प्रोसेसिंग से, काम तो एक बार में एक ही हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने और बेवकूफ बनाया लोगों को। हमने कहा कि चलो हम एडवांस करते हैं, इसे हमने बना दिया जी मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग सिस्टम। ठीक, मल्टीटास्किंग सिस्टम में हमने क्या किया, मेमोरी हमारे पास थी, ठीक है। मेमोरी में हमने जॉब डाल दी, जैसा कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग किया था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। बट अब हमने एक जॉब को कंप्लीट ना होने दिया। हमने क्या कहा, हमने कहा कि सीपीयू कांस्टेंट टाइम के लिए ही प्रोवाइड होगा हर एक जॉब को। कांस्टेंट टाइम जिसे हम बोलते हैं टाइम स्लॉट, टाइम स्लॉट, या फिर टीएस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम टाइम क्वांटम भी बोलते हैं, है ना। तो क्यू के नाम से भी जानते हैं, टाइम क्वांटम, है ना। तो हमने कहा कि अब जितने भी जॉब्स आपके रैम में पड़ी हैं, सिस्टम में मेमोरी में पड़ी हैं, अब ये जो सीपीयू है ये स्विच होगा इनके बीच में, इन जॉब्स के बीच में। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, भाई जॉब अगर 5 जॉब को कंप्लीट होने में 5 सेकंड चाहिए, तो 5 सेकंड तो 5 सेकंड ही रहने वाले हैं। वो नहीं चेंज हुआ इसमें। चेंज क्या हुआ कि अब ये है कि हर एक सेकंड में हर एक जॉब को उसका टर्न मिल रहा है काम करने का। समझ में आ रहा है मेरी बात। यानी कि अगर हमने टाइम क्वांटम डिफाइन कर रखा है
टीएस हमने अगर 1 मिली सेकेंड डिफाइन कर रखा है, दैट मीन्स 1 मिली सेकेंड तो वो इसके पास रहेगा, जॉब 1 के पास, फिर सेकंड 1 मिली सेकेंड पे वो जॉब 2 का काम करेगा, थर्ड 1 मिली सेकेंड में वो जॉब 3 का काम करेगा, फोर्थ 1 मिली सेकेंड में वो जॉब 4 का काम करेगा, फिफ्थ 1 मिली सेकेंड में वो जॉब 5 का काम करेगा, और फिर उसके बाद वापस घूम के जॉब 1 पे आ जाएगा। फिर अगले 6 मिली सेकेंड में वो जॉब 1 का काम करेगा, सेवन्थ में जॉब 2 का, एट्थ में जॉब 3 का, लाइक दैट। तो इस तरह से आपने क्या किया, मल्टीटास्किंग, मतलब आपने सिस्टम में एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि अब 5 जॉब एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम में। तो ये फील आपने यूजर को दिया, यूजर को ये लग रहा है कि भाई उसके पांचों की पांचों जॉब एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, जबकि उसे ये नहीं पता है कि भाई वो रियल में जॉब कंप्लीट नहीं हो रही है, वो जॉब का एक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, बट उससे आपने यूजर को एक गुड फीलिंग दी, है ना। तो इस तरह के सिस्टम को हमने मल्टीटास्किंग सिस्टम बोला, या फिर कौन सा सिस्टम बोला बच्चे, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चे? इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चे? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? यस सर, आवाज आ रही तो जो मैंने मल्टीटास्किंग का ये तरीका बताया काम करने का, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं बच्चे? थ्रेडिंग सर। हाँ, थ्रेडिंग भी सही है, बट रियल में इसका दूसरा नाम क्या होगा? रियल में आप कर क्या रहे हो, सीपीयू के टाइम को तो शेयर कर रहे हो, है ना, राउंड यस। रॉबिन फैशन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये इसी का दूसरा नाम और है। ये है कि कैसे एक पार्ट कंप्लीट कर रहा है, पूरा जॉब कंप्लीट नहीं कर रहा। हाँ, ये टाइम शेयरिंग इसलिए तो बोल रहे हैं बच्चे, सीपीयू, सीपीयू जिसे कहते हैं ना, जंप कर रहा है, क्या कर रहे हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, जंप करने को कुछ और भी बोलते हैं हम लोग, होप करता है, हाँ। जो आपका सीपीयू है वो मल्टीपल जॉब्स में होप करता है, जंप करता रहता है हर एक कांस्टेंट टाइम में। यानी कि आप एक जॉब है, उसको पहले 1 सेकंड के लिए सीपीयू दोगे, फिर उसके अगर दूसरी जॉब वेटिंग में है तो दूसरी जॉब को फिर फर्दर नेक्स्ट सेकंड दोगे, तीसरे सेकंड में तीसरी जॉब का काम करोगे, चौथे सेकंड में चौथी जॉब का, लाइक दैट। और फिर जब जितने भी जॉब्स आपकी रैम में उन सबका टर्न आ गया, तो फिर दोबारा से रिटर्न आ जाते हो, फिर साइकिल बना देते हो आप, एक साइकिल में चलता रहता है काम। तो जैसे अब मान लो, टाइम तो उतना ही लगने वाला है जितना टाइम उस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में लगने वाला था, टाइम उतना ही लगने वाला है, टाइम नहीं बदला आपका। बट ये है कि भाई हर एक जॉब को, हर एक प्रोसेस को ये लग रहा है कि उसका 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 प्रोसेस चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है उसकी। उसको ये नहीं लग रहा है कि वो वेटिंग कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि रनिंग में है। बच्चों की सीपीयू इतनी फास्ट काम करता है, तो इसलिए उसको पता ही नहीं लगता कि वो ये काम कर रहा है बैकग्राउंड में, उसे ये लगता है कि उसी का काम चल रहा है। नहीं समझ में आया? आ है गया ना? सर। आ गया सर। है ना, बस आपने केवल एक फील दिया कि भाई आपके जितने भी टास्क सिस्टम में पड़े हुए हैं वो रनिंग में है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने वेटिंग में डाल रखा है, मैं उसे रन कर रहा हूँ जी, ऐसे करके। जबकि प्रीवियस केस में क्या था कि प्रीवियस केस में जब जॉब 1 जब तक कंप्लीट नहीं होती थी, आप जॉब 2 को टर्न नहीं देते थे, सीपीयू नहीं देते थे, राइट। तो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द जो आपके